everyone, welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is the book Step into English. Let's move on to chapter number 15. Bunny wants to play. So this story is of Bunny, a rabbit. So Bunny, Croaky and Quacky were three friends. ये तीन friends थे, Bunny, Croaky and Quacky. Bunny was very fond of reading. Bunny को reading करना बहुत अच्छा लगता था. It made his friends angry and they tried to teach him a lesson. So वो बार बार पढ़ता रहता था, जिसकी वजह से उसके friends जो थे वो गुस्सा हो गए और वो उसे मज़ा चखाना चाहते थे. Let's read how this dispute was settled in the end. कैसे dispute settle होता है वो हम पढ़ेंगे. Let's move on to the story. So Bunny was a cute little rabbit. ये cute सा little rabbit था and he lived with his parents in a big hole under the big banyan tree. वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़े से होल में रहता था जो कि एक बड़े से बैनन ट्री के नीचे था on the side of a big lake. बड़े से लेक के पास ये बैनन ट्री था, वहीं पे वो रहता था. Croaky frog lived in that lake and Quacky duck swam in that lake all day long. So वहाँ पे और कोई भी रहता था, वहाँ पे रहता था Croaky frog जो उस लेक में रहता था और Quacky duck जो है वो उस लेक में पूरे दिन स्विम करता रहता था. They were Bunny's friends और ये दोनों जो है बनी के दोस्त थे. Bunny was mannered and obedient. उसके जो manners थे बहुत अच्छे थे, वो obedient था and he always obeyed his parents and elders. वो हमेशा अपने parents और elders का ध्यान रखता था, उनकी बातें मानता था. So everybody loved him. So इसलिए सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. But the only problem was that he was sometimes very lazy. लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी उसके साथ और वो ये थी कि वो कई बार बहुत ज़्यादा लेजी रहता था. He did not like to go out and play. उसे जो है बाहर जाना और खेलना अच्छा नहीं लगता था. He liked to stay in the home all the time and read comics. उसे घर पे रहना अच्छा लगता था और कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता था. He was never bored inside the house. वो घर के अंदर कभी भी बोर नहीं होता था. His friends sometimes tease him, calling him a bookworm, but he didn't mind that. So उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसे चिढ़ाते थे और क्या बोलते थे, उसे bookworm के नाम से बुलाते थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. His parents appreciated his reading habit. पेरेंट्स को उसकी यह हैबिट बहुत अच्छी लगती थी रीडिंग करने की. His mother encouraged him and asked him to read not only comics but also books on all topics. तो उसकी मदर कहती थी कि तुम्हें सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए सारे टॉपिक्स पे. But she was worried that he would not grow up to be a healthy rabbit if he stayed inside all the time. लेकिन मम्मी डरती थी कि अगर मेरा जो बेटा है वो पूरे दिन घर में रहेगा तो वह हेल्दी रैबिट नहीं बनेगा. So she wanted him to go out sometimes and play with his friends. इसलिए वो चाहती थी कि वो जो है घर से बाहर निकला करे, अपने दोस्तों के साथ खेला करे. It was a spring season and the day was nice and sunny. Spring season चल रहा था, दिन काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी. Croaky frog and Quacky duck came to Bunny's house. अब ये दोनों ही उसके फ्रेंड्स के घर आ जाते हैं. Bunny was reading comics. Bunny जो है कॉमिक्स पढ़ रहा था. Bunny, it is a wonderful day. Let's go and play some new games. तो उसके फ्रेंड्स ने आके बोला कि बनी आज का दिन तो बहुत अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं और कुछ नए गेम्स खेलते हैं. Bunny's mother was happy to see them. बनी की मम्मी जब देखती हैं कि बनी के फ्रेंड्स आए तो बहुत खुश हो जाती हैं. Bunny, your friends have come to call you. Go out and play with them, she said. तो उन्हें देखते ही मम्मी ने कहा जाओ, तुम्हारे दोस्त आए हैं, जाओ उनके साथ जाके बाहर खेलो. Bunny was not in the mood. बनी का बिल्कुल भी मन नहीं था खेलने का. He was reading a very interesting book and he didn't want to leave it and go out. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बुक पढ़ रहा था और उसे वो छोड़ के जाना नहीं चाहता था. No mom, I don't want to go. I just want to read. Let them go and play. So उसने अपनी मम्मी को रिप्लाई किया कि नहीं मम्मी, मुझे ना
बाहर नहीं जाना, मुझे सिर्फ पढ़ना है, इन्हें बोल दो बाहर जाके खेलें। He said quite rudely, उसने बहुत ही रूडली अपनी मदर से ये बात बोली। Neither Bunny's mother nor his friends like that, किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, ना मम्मी को ना ही दोस्तों को। They tried to explain to Bunny that he should not talk like that to his friends, but he would not listen. अब जो है सबने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हें अपने दोस्तों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। Finally, Croaky and Quacky went away sadly. और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ही जो बनी के फ्रेंड्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं। Mama Bunny was angry and scolded Bunny for being rude to his friends. अब जो मम्मी बनी थी वो जो है बहुत गुस्सा हो जाती हैं उससे और जो है उसे डांटने लग जाती हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, वो तुम्हें बुलाने आए और तुम जो है उन्हें भगा रहे हो। But Bunny didn't bother, लेकिन बनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। He just wanted to read, so he went into the garden, lay down comfortably on the green grass and began to read. So वो क्या करता है, जाता है आराम से जाके गार्डन में लेट जाता है और वहाँ पे लेट के ग्रीन ग्रास पे वो पढ़ने लगता है। Meanwhile, Croaky and Quacky were on their way to the lake. अब जो है क्रोकी और क्वैकी जो है लेक की तरफ जा रहे थे। They were hurt and angry at Bunny's behavior. वो बनी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। Just then, they saw Bunny come into the garden and lie down on the green grass. और अचानक से उन्होंने देखा कि बनी बाहर आया हुआ है और हरी घास पे लेटा हुआ है। How can he be so calm and cool after behaving so badly with us? They thought. वो सोचते हैं कि इतनी बुरी तरह से हमसे इसने बिहेव किया है, उसके बाद ये इतना आराम से कैसे लेट सकता है। क्रोकी वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री, क्रोकी जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जस्ट देन ही नोटिस अ पिन लाइंग ऑन द ग्राउंड, अचानक से उसने देखा कि ज़मीन पे क्या है, एक पिन पड़ा हुआ है। ऑल एट वंस ही पिक्ड इट अप एंड डिसाइडेड टू स्टिक इट इनटू बनी। उसने सोचा वो पेन उठाते हैं और बनी पे चिपका देते हैं। दैट विल टीच हिम अ लेसन, ही थॉट, उसने सोचा कि इससे उसको जो है सबक मिलेगा, उसको अपनी गलती का एहसास होगा। जस्ट एज ही वॉज क्रीपिंग अप टू बनी, बनीज ममा केम आउट टू हैंग सम क्लोथ्स एंड सॉ हिम। सो जैसे ही वो ये करने वाला था, जो बनी की मम्मी थी वो बाहर आती हैं कुछ कपड़े फैलाने और वो उसे देख लेती हैं। एट वंस शी अंडरस्टूड द होल सिचुएशन, और उस समय वो पूरी सिचुएशन समझ चुकी थी। शी कॉल्ड आउट लाउडली क्रोकी, बोथ क्रोकी एंड बनी हर्ड हर एंड लुक्ड अराउंड। सो जैसे उन्होंने चिल्लाया क्रोकी, दोनों ही क्रोकी और बनी दोनों ने उनकी आवाज सुनी और इधर उधर देखने लगे। Mama went straight to Bunny and told him that Croaky was just about to stick a sharp pin into him. मम्मी जो है जाती हैं बनी के पास और उन्हें बताती हैं कि जो तुम्हारा फ्रेंड है क्रोकी, वो तुम्हारे बॉडी में एक बहुत ही नुकीला पिन लगाने वाला था। Do you know why? तुम्हें पता है क्यों? He was angry with you because you were rude, she said. तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि तुमसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि तुमने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। बनी वॉज अबाउट टू प्रोटेस्ट, अब बनी को गुस्सा आ गया ये सारी बातें सुन के, वो प्रोटेस्ट करने वाला था। बट देन ही सॉ द एक्सप्रेशन ऑन क्रोकीज फेस, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके जो फ्रेंड था क्रोकी, उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज था। ही लुक्ड एट हिज मदर, मदर की तरफ वो देखने लगता है। हर फेस वॉज ऑल्सो स्टर्न लाइक क्रोकी एंड क्वैकी, और उनका जो फेस था वो भी उसके फ्रेंड्स क्रोकी और क्वैकी की तरह दिख रहा था। बनी केप्ट क्वाइट, अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है बनी जो है चुप रहता है। देन हिज मॉम एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड नेवर बी रूड टू एनीवन। फिर उसकी जो मम्मी हैं वो उनसे समझाती हैं कि किसी के साथ रूड नहीं होना चाहिए। इवन टू हिज ओन फ्रेंड्स, अपने खुद के दोस्तों से भी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। और दे वुड नॉट बी फ्रेंड्स विथ हिम एनी लॉन्गर, फिर क्या होगा अगर आप रूडली बिहेव करोगे तो वो आपके फ्रेंड नहीं रहेंगे।
She also told him that it was fine to read books as long as it did not stop him doing other things. So वो ये भी कहती है कि वो ठीक है तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन बुक तब तक ही पढ़ो जब तक जो है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो हैम्पर ना हो रही हो. Playing games, going out in the open air and taking exercise were necessary for good health. So बुक तो पढ़ना अच्छा है लेकिन उसके साथ गेम खेलना, बाहर जाना ओपन एयर में, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें भी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. He should read story books only when he was stuck inside the house on rainy days or when he was alone. सो बुक तुम तभी पढ़ो जब तुम बारिश के दिनों में घर में फंस जाते हो या फिर अकेले रहते हो, उसके अलावा नहीं. बनी फाइनली अंडरस्टूड व्हाट हिज मदर वाज ट्राइंग टू से. बनी को अब सारी बात समझ में आ जाती जो उसकी मदर उसको समझाना चाहती थी. ही हैड हर्ट हिज बेस्ट फ्रेंड्स बाय बिहेविंग रूडली विद देम एंड बाय रिफ्यूजिंग टू प्ले विद देम. उसने अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका दिल दुखाया था, उनके साथ रूडली बिहेव करके और उनके साथ खेलने से मना करके. सॉरी क्रोकी एंड क्वैकी, ही सेड, आई शैल नेवर बी रूड टू यू अगेन. आई शैल कम आउट विथ ऑल ऑफ यू एंड प्ले व्हेनेवर यू वांट मी टू डू सो. सो आगे वो अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोलने के बाद प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी रूडली बिहेव नहीं करूँगा और जब भी तुम मुझे खेलने के लिए बुलाओगे बाहर मैं आ जाऊँगा. क्रोकी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. ही सेड, ग्रेट, वी कैन गो एंड स्विम इन द लेक एंड देन यू कैन टेल अस द स्टोरी दैट यू वर रीडिंग. कम ऑन. सो आगे जो क्रोकी कहता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, चलो अब हम स्विमिंग करते हैं लेक में और फिर जो है उसके बाद तुम हमें वो स्टोरी सुनाना जो तुम उस समय पढ़ रहे थे. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गो ऑन एंड ऑन. सो क्यूट मीन्स अट्रैक्टिव. लेक इज लार्ज वाटर बॉडी. मैनर्ड इज वेल बिहेव्ड. लेजी मीन्स आइडल. टीज मीन्स मेड फन ऑफ. एप्रिशिएटेड, लाइक्ड. Topics, subjects, rudely, impolitely. Bookworm is devoted. Reader. Wonderful means fantastic. Scolded, rebuked. Calm and cool, tranquil. Creeping means moving steadily. Protest is object. Stern is serious. Necessary is essential. Refusing is declining or rejecting, and grown up is matured. So these are the word meanings that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's dig in. Give your thoughts on. So a exercise is take the correct answers. First one is quacky duck in that lake all day long. Played, swam, lived. Swam. Question number 2. Bunny was a cute little duck, frog, rabbit. So it was a rabbit. Question number 3. He always dashed his parents and elders. So he always loved his parents, helped his parents, obeyed his parents. Obeyed his parents. Fourth one, his friends sometimes tease him, calling him a bookseller, book lover or bookworm. Correct answer is bookworm. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the words given below. So Bunny was a cute little rabbit. Next, he was never bored inside the house. Third one, Bunny's mother was dashed to see them, happy to see them. Now, fourth one, I shall never be rude to you again. And fifth one is, and then the three friends had a wonderful time. Let's move on to C exercise, which is take the true statements and cross the false ones.
First one, Bunny's parents did not like his reading habit. So this is false. They liked his reading habit. Next, Croaky was already very angry with Quacky. This is false. Third one, taking exercise is necessary for good health. Correct. Fourth one, Croaky, Duck, Quacky, Frog were Bunny's friends. Wrong, the names are interchanged. Fifth, Bunny was fond of reading comics. This is correct. Let's move on to the exercise, which is match the following. So here there are two columns A and B. Let's match them. So A is Bunny, the rabbit, Croaky, the frog, Quacky, the duck, story, book, green, grass. So these are the answers. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, who was Bunny? So Bunny was a rabbit, and where did he live and with whom? So he lived with his parents under a banyan tree into a big hole which was situated near a lake. Question number 2, who were Croaky and Quacky? So Croaky and Quacky were friends of Bunny. Croaky was a frog and Quacky was a duck. Why did they go out sadly? So they went out sadly because their friend Bunny rejected to go with them to play. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.